صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر سلوات اور دے دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سلوات برائے سلامتی امام زمان۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثوا احوى۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے عزیزان گرامی، پروردگار اعلیٰ میں نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی ہے، اس کے بعد بات کی آیت کر لگے سورت لمبی پڑھ دو، تشریح کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہنا ضروری ہے اس لیے سنقرئک ولا تنسیٰ ہے۔ یہ ساری اپنی تعریفیں بتانے کے بعد وہ کہہ رہا ہے رب، وہ پروردگار یہ کہہ رہا سنقرئک، جو تم قرأت کرتے ہو یہ رسول، ولا تنسیٰ۔ تنسیٰ کس سے بنا ہے؟ نسیان سے۔ نسیان کسے کہتے ہیں؟ بھولتا نہیں۔ بچے زیادہ ہیں، جوانوں کی بھی تعداد ماشاءاللہ زیادہ ہے، اور بہرحال جو یہاں پہ خطیب ہوتا ہے نا، اسے بوڑھے بھی جوان دکھائی دیتے ہیں، اور محشر کے میدان میں تو سب جوان علی کے چاہنے والے جوان ہو کے جائیں گے، تو مولا انہیں جوان رکھے، ان کے دل جوان ہونے چاہیے، دل ہے نا، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، جسم بوڑھا ہے مگر دل ابھی بوڑھا نہ ہوا۔ میں نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی اور تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہو جائے، اس لیے کچھ تو شکایات ہیں، اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوگا کہ عزائے ہمیں سید الشہداء میں آئے تو اس امام بارگاہ کو اپنا گھر سمجھے۔ یہ نہیں ہے کہ بچوں کو لے کے آتے ہیں، بچے کھائیں تو یہیں پہ آپ پھینک کے چلے جائیں، آپ کو ایک ایک چیز کا حساب وہاں دینا ہے، اس بات کو ذہنوں میں رکھیں۔ یہ تو امام بارگاہ ہے، لیکن ہمارے چلنے کی آہٹ، ہمارے بولنے کا طریقہ، ہمارے بات کرنے کا انداز لوگوں کو یہ بتائے کہ شیعان حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں، کنیزان سید کونین ہیں، یہ تو امام بارگاہ ہے، یہاں تو لحاظ کریں۔ لیکن ہم تو یہ کہیں گے سڑکوں پہ بھی اگر گزرے تو ایک ٹکڑا بھی کاغذ کا سڑک پہ نہ پھینکیں، کیونکہ اگر ہر آدمی پھینکتا رہے گا تو تمہارا ملک ہے، ملک سے محبت وفادار کی پہچان ہے، ملک سے نفرت غدار کی نشانی ہے۔ یا
खोल के नमाज पढ़ने वाले हाथ खुला क्यों रहता है? ताकि महशर के मैदान में याद ली करने के लिए उठा रहे हाथ, तो ये हाथ यहाँ उठे रहेंगे महशर के मैदान में। हम इन्हीं हाथों से पहचाने जाएंगे कि ये हाथ थे। अगर दाना नीचे गायकर बड़ा आती आए के ऊपर आते हुए वापस आते हुए जिक्र गमे शबीर में आए तो घर से निकलते हुए दामन को फैलाते हुए दुआएं करते हुए आए। बीबी फातिमा ज़हरा हमारे दामन को दुआओं से भर देना। हम अपने बाद हम आज पहचाने जाए या ना पहचाने जाए, मेरे बच्चों से हमारी पहचान बने, मेरे बच्चे वो अमल करें कि हम अपने बच्चों से पहचाने जाए। आपके दिल में जो दुआएं हैं बीबी फातिमा ज़हरा उनको पूरा करें। मैंने सूरह आला की तारीफ की तिलावत की है, क्या कहना मालिक मेरे बाबू। वो कुरान जो सीने मोहम्मद, वो सूरा, वो कुरान जिसको मैंने मोहम्मद के सीने पे उतारा। क्या कहना, कुरान मोहम्मद के सीने पे उतारा गया। बीबियों, वो कुरान जो पहाड़ों पे बड़े जबालों, अगर जबालों के ऊपर उतरता तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। मोहम्मद के सीने पे उतारा, मोहम्मद के सीने में नहीं उतारा है। क्यों नहीं उतारा? मोहम्मद के सीने पे उतारा क्योंकि मोहम्मद के सीने में तो अली रहता है, कुरान ऊपर होता है, अली आराम करता है। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं होती अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए सबसे इसमें रब्बे का लाला परवरदिगार आलम अंदाज ताल्लुक बता रहा है। कहीं आप जाए अपनी बात पूरी करवाना हो, अपनी बात कहना हो, तो ये नहीं है जाए फौरन बोलना शुरू कर दें, फौरन चौंक जाते हैं ये कौन बोल रहा है। और कभी कभी आवाज में भी कशिश कम होती है तो या हम जिसको मोहब्बत नहीं करते उनको कहते चिपकाए गायब कर रही है, कैसी आवाज है। तो तारुफ अल्लाह बता रहा है कैसे किया जाता है, कैसे कराया जाता है। पहले अपनी तारीफ करो। आप देखिए कोई मामूली आदमी आए कुछ कह रहा हो, लोग ना सुनेंगे, लेकिन कोई कहते हाँ SSP साहब है, ये उनके घर की फैमिली है, कुछ भी बोल रहे हैं हम आप पीछे पीछे भागे भागे चले आएंगे। बीबियों ये सोच के बस मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, इसलिए ना मैं कोई खतीब हूँ ना मैं कोई जाकिरा हूँ, मेरा कोई रुतबा नहीं है। कसम खुदा ये बात दिल की गहराई से है। मैं सिर्फ बीबी के गुलाम हूँ, अल्लाह की नौकर हूँ। जहाँ से आता है बुलावा वहाँ झोला लेके चले जाते हैं। कोई पैदल बुलाए तो पैदल चले जाएंगे, कोई गाड़ी भेजे तो उससे भी चले जाएंगे। हर जिक्र शबीर करने वाले को मैं ये देती हूँ, पैगाम पहुँचाती हूँ कि कभी मौला से नखरा न करना, क्योंकि अगर तुम उनसे नखरा करोगे तो तुम्हारा नखरा कोई नहीं उठाएगा। अपने अंदर इतनी इंकिसारी पैदा करो, इतनी इंकिसारी पैदा करो कि जहाँ पे तुम्हारे लब खुले बीबी का सर के ऊपर हाथ हो जाए। क्यों बताइए कि जो परवरदिगार आलम, मैं क्या बोलती हूँ मुझे नहीं पता होता है, मेंबर पे आने के बाद ये परवरदिगार बुलवाता है, ये बीबी देती है शर्फ की बात, घर में जाके बयान करे तो रवानी नहीं पैदा हो सकती है। भाई को परवरदिगार आलम जो एक दरख्त को कुव्वत गोयाई दे सकता है, क्या वो ज़बान में रवानी नहीं दे सकता है? इस सोच के सुने कि इसके सर पे हाथ बीबी ज़हरा का होता है और दिल से दुआ मांगते रहें। सब बात मेरे वक्त बहुत तेजी से गुजरता है और वक्त बहुत खतरनाक भी होता है। वक्त से बचे रहें, वक्त की आंधी से परवरदिगार हम सबको बचाए। जो शिया ने हैदर करार हैं सफ़ेदा पे आए हैं, इनकी तमाम मुरादों को बीबी ज़हरा पूरा करें। सब इसमें कर आला, वो आला है, उसने कहा अपना ताल्लुक पहले कराना। मैंने जो जुमला कहा जब ताल्लुक हो जाता है तो अल्टीमेट लोग आपकी तरफ रुजू हो जाते हैं। उसने अपना ताल्लुक कराया। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, और वो
तुम्हें कितना अच्छा बनाया। अब इंसानों की फितरत होती है ना हर चीज में बुराई निकालने की, किसी की भी सूरत की बुराई ना करना, किसी की भी किसी चेहरे की तो बुराई करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि सूरत के लिए परवरदिगार आलम ने कहा है ना, सूरह हदीद में कहा है फी सूरत फी अय्य सूरतिन अय्यशा अय्यशा, जैसी मेरी मंशा होती है, रकबका, मैं जैसी चाहता हूँ तस्वीर अंधेरे में खींच देता हूँ। अजीजों, हमारी शक्लें बनाने वाला तो वो है। कोई आम आदमी बना रहा हो तो तुम सूरतों की बुराई करो, शक्लें बनाने वाला वो है। उसने जिसको भी जैसा बनाया है बेहतर बनाया है। एक मामूली आदमी बनाता है तो तारीफ का मुतमन्नी होता है। इसलिए हमें अपनी शक्लों से कभी शिकायत ना होना चाहिए। हम अपने आप में ना जाने हैं कि हम सबसे खूबसूरत हैं, हमारी औलाद सबसे खूबसूरत है, लेकिन नाजा जितना भी रहे कभी तकब्बुर में ना आए। जब भी सोचे ये सोचे उस परवरदिगार का दिया हुआ है, क्योंकि परवरदिगार आलम तुम्हें याद दिला रहा है कि मैंने तुम्हें इंसान भी बनाया है तो इंसान कैसे बनाया, कितना अच्छा बनाया है। अल्लाह जी खलक़ फसव्वा, मैंने तुम्हें बहुत अच्छा बनाया। अच्छा से मुराद भी एक आयत जुड़ी हुई आ गई ना, नफ्स मा सव्वा, मैंने तुम्हें कितना अच्छा बनाया था। तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा सा नफ्स भी रख दिया है। वो नफ्स क्या है? तुम्हें हर बुराई से रोक लेता है। भाई कुछ बीवियां ये भी रहता, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह, हम ये बीवियों का हुनर कहेंगे कि मस्जिद में कर लेती है, थोड़े थोड़े 2-3 काम और भी हो जाते हैं, सोना वोना बीच में हो जाए, कोई बात नहीं है। मगर मौला आपका सोना भी ऐसा सोना हो कि वो खरा सोना बन जाए, महशर के मैदान में मिले। सबसे अदा पे आई है तो सवाब ही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर अली वालों को सोना नहीं करता है, बस सामने थोड़ा सोना ना हो। सोना महंगा भी बहुत है, इसलिए सोने की आजीजा ने बात पे वापस आते हुए अल्लाह के खला का फसवा, मैंने तुम्हें कितना अच्छा बनाया। तुम तो सब बहुत अच्छे हो, आप तो सब बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी लगती है हमारे दिल से पूछिए। अभी चंद दिन हम आपसे जुदा के नहीं आ पाए मेंबर पे, हमने कितना याद किया, कितना अपने अज़ादारों को मिस किया। ये खतीब सिर्फ जानता है। और सिर्फ ये बता दें कि जब हम यहाँ पे मेंबर पे आते हैं तो आप हमें क्या लगती हैं? चांद और सितारे लगती हैं। बिल्कुल दलील के साथ यूं ही चांद और सितारे लगते हैं। क्यों? सफेदा के ऊपर जो चादर बिछती है उसे क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। चांदनी कहाँ छिड़कती है? आसमान पे छिड़कती है। आसमान में चांद और छोटे छोटे सितारे होते हैं। खतीब जब आता है मिंबर के ऊपर तो उसको अज़ादार जो हुसैन के होने वाले होते हैं, ये मेरे मौला ने कहा था कि ये चांदनी है, तब से ये लफ्ज चांदनी निकला। तो ये जो सुनने वाले होते हैं चांद और सूरज लगते हैं, इसलिए ये चांदनी कहलाती है। जवाब मेरे मोहम्मद मैंने वक्त में गुंजाइश कम होती जा रही है। मैंने 5:45 पे हम बैठे थे, 15 मिनट निकल चुका है। 15 मिनट में रखते मसाइल 45 मिनट के अंदर दुआ समय मुझे नीचे उतरना है, क्योंकि तकरीर लंबी, बाद में वजन कम हो जाता है। अपने अंदर वजन पैदा करो, बात जितनी छोटी होती है अच्छी एप्लीकेशन वही मानी जाती है। सब्जेक्ट बस ऊपर डाल दें, एप्लीकेशन तो रद्दी खाने में फेंक देते हैं बड़े बड़े मिनिस्टर, खाली ऊपर का सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। लेकिन हाँ फिर भी ये अज़ाइर हमें सैयद होता है, इसका हिसाब न करना। ये फर्जुल्लाह कर्ज़न हत्ता फयुज़ाइफ़हु इज़ाफ़न कसीरा, मैं तुम्हें इज़ाफ़ा कसीर दूंगा। नफ्स मा सव्वाहा, आगे की आयत फिर सुनिएगा। वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, और मैंने तुम्हारे लिए सूरह आला की आयतें हैं, मैंने तुम्हारे मुक़द्दर को बनाया है। क़द्दरा मुक़द्दर कर दिया है, लेकिन ये तो हम समझते हैं कि अल्लाह ने मुक़द्दर बना दिया। जहाँ मुश्किल आई अल्लाह के साथ ठोक दिया माथे हुए, सब अल्लाह ने बिगाड़ा है, अल्लाह ने मुक़द्दर बनाया। उसने कहा क़द्दरा, मैंने तुम्हारे मुक़द्दर में हादी रखा। फ़हदा, आगे की आयत को छोड़ देते हैं, आधी आयत पढ़ते हैं। आधी आयत पढ़ने में बड़ी मुश्किल होगी, वहाँ मैशर के मैदान में भी पहचाने नहीं जाएंगे। अजीज़ा नहीं लगे अल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, मैंने तुम्हारे लिए मुक़द्दर किया हिदायत के लिए।
वो हिदायत के लिए आती है। कुरान कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए हादी क़यामत तक के लिए मुकर्रर किया, और मेरे आखिरी हादी को ना मानने वालों, ये बताओ ये कैसा तुम्हारा तजुर्बा है। कुरान तो कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क़दरा फ़ादा हिदायत मुकर्रर की है, तो जब तक ये कायनात होगी तब तक मेरा आखिरी हादी होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मरा, और उसके बाद मैंने जमीन के अंदर से अखराजा निकाला। ये अखराजा क्या चीज है? जमीन के अंदर से क्या निकलता है? आदमी तो निकलते नहीं है जमीन के अंदर से, पेड़ पौधे तो निकलते हैं ना। अखराजा उसे कहा, क्या क्या अंदाज बनाया है ना। हम लोगों ये अल्फाज जो ये हैं उर्दू जबान में आए हैं, अब 3 जबानें से सीख ले तो हम दुनिया के ऊपर कुदरत कर ले। एक उर्दू, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। उर्दू जो होती है फारसी, अरबी, इन सब का संगम है, और अंग्रेजी है, फ्रेंच दुनिया भर की स्पेनिश, ये सब है। अंग्रेजों की जबानें वो ले लो, और उनकी मिली जुली है। अंग्रेजी टूटी फूटी भी आ जाए तो कहीं पे जाए काम चला लेंगे, फ्रेंच पे जाए, फ्रांस से जाए, रूस जाए, अमेरिका जाए, वहाँ पे अपना सीधा बोल बाल के काम चला लेंगे हिंदुस्तानी। उसके बाद फिर आ जाइए, अच्छा हिंदी बड़ी खतरनाक है। हिंदी हमें अच्छा कर लेना चाहिए। हम हिंदुस्तानी जो होते हैं ना, हमारे बच्चे को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती, हिंदी नहीं आती है। बड़े अफसोस की बात है, हम हिंदुस्तान में रहते हिंदी नहीं आती है ना। जानती है क्या नुकसान होगा? क्योंकि हिंदी है सारी देहाती भाषाओं का संगम है। गुजराती इसमें है, मारवाड़ी इसमें है, सारी जबानों की बात हुई है ना। क्योंकि परवरदिगार आलम ने कुरान को अरबी में किस लिए नाज़िल किया था? वहाँ के वो जाहिल अरब थे, वो समझ सके, उन्हें समझाने के लिए उतारा था। परवरदिगार आलम जानता था कि हिंदुस्तान के लोग इतने समझदार होंगे कि अरबी को समझ लेंगे, इसलिए अपनी लैंग्वेज स्किल को हमें सुधारना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हिंदी जो मैं कहने जा रही हूँ कि क्यों जरूरी है। हिंदी आएगी तो देहाती भी आ जाएगी, है ना। निकलत है, निकल रहे हैं, निकलत है, निकसत है, सारी जबानों में आ जाओ। इसलिए नहीं कहने जा रहे, जो मुद्दे की बात कर रहे हैं। हमारे नौकर जो होते हैं, है ना, जो काम करते हैं, बंगाली हैं, है ना, आसामी है, हमारे ही सामने दूसरे नौकर से खड़े होकर हमारी ही बुराई करते रहते। हमें औंधी सीधी तो समझ में आनी चाहिए, तो उसको हम ट्रैक कर सके। अजीज़ान ग्रामी, ये घर चलाने के लिए जरूरी होता है। मेरे मौलाए कायनात ने, अब मैं मिलाती हूँ मौलाए कायनात से, नहजुल बलागा से, ये जिंदगी के नुस्खे होते हैं। यहाँ पे आके सीखे कि जिंदगी के नुस्खे हैं। मेरे मौलाए कायनात ने कहा था कि जब नौकर जिस जबान में बात करे, उसकी जबान का तुम्हें थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। जब नौकर को घर में छोड़ के जाए तो उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी छोड़ के जाए। ऐसे ना हो कि घर के काम से जल्दी से आगाज होते, जब हमें घूमना होता है ना, उस वक्त कुछ याद नहीं रहता। औरतें तो बेचारी घर के अंदर बन रही थी, तो जब घूमने में मामला होता सब भूल भाग जाते हैं। हड़बड़ निकले और अब तो घूमना है, सामान झोला लेके। लेकिन नहीं, नौकर के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के जाना है, क्योंकि तुम्हारी एब्सेंस में वो नौकर कहीं ला खैरा न बन जाए। आने के बाद काबू में नहीं आते हैं। मैंने जो बात कही जबान के ऊपर, जबान पे होते होते कहाँ पर अपनी आयत को छोड़ा था? अल्लज़ी खलक़ अखरजल मरा, मैंने अखरजा निकाला, जमीन के अंदर से दरख्तों को निकाला। फिर वो कह रहा फजालहु गुस्वन अहवा, और मैंने इसको क्या किया? ऐसा बना दिया भूसे की तरह। एक एक आयत को, मेरी पूरी मजलिस को अपने ज़हनों में आप चश्मा रखें। मैं पीछे से दोहराती रहती हूँ कि मैंने शुरुआत कहाँ से की, सूरह आलम से शुरुआत की है। बीवियों को तंबीह करते हुए जिन जिन बातों की तंबीह की, उसको भी अपने ज़हनों में रखें। फिर वो कह रहा फजालहु गुस्वन अहवा, ये जो चारा है ना, ये कैसा हो जाता है? भूसी की तरह हो जाता है। बिल्कुल तवज्जो रखें, एक लम्हा ना अपने ज़हनों को हटाना, क्योंकि ये कुरान की आयत से रवायत नहीं है। आयत पढ़ ली, आयत और रवायत में बड़ा फर्क होता है, और रवायत भी पढ़ूंगी तो मुजल्लल रवायत होगी। अखरजा गुस्वन अहवा, यह अखरजा जो निकला, ये क्या होता है? ये पेड़ पौधे एक वक्त के बाद क्या होते हैं? सूख जाते हैं। कैसे होते हैं? सूखी घास की तरह होते हैं। गुस्वन अहवा, और दरिया में एक भूसी की तरह ऊपर तैर के आ जाते हैं। ये रब मेरे परवरदिगार आलम, ये क्यों तू बयान कर रहा है? मेरा मालिक ये कहेगा कि देखो बंदो, तुम अपने को समझ लेना कि तुम जब
तुम्हें भेजा है, मैंने कितना अच्छा बनाया है, ऐसा न हो ये जो अकल जल मर आए, ये जो दरख्त मैंने उगाए थे, ये जलने के बाद, सूखने के बाद कब आते हैं ऊपर? ये जल जाते हैं। जब जल जाते हैं तो ये ऊपर भूसी बन के आ जाते हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल हासिदीन। अल्लाह हासिदों को नहीं पसंद करता है। जब हम हसद करते हैं तो क्या होता है? अंदर से जल जाते हैं, और जब जल जाते हैं तो वो भूसी की तरह हो जाएंगे, दरिया के पानी पे तैरने लगेंगे। वजन किससे पैदा होता है? आदमी में वजन है उसकी बात से, उसके किरदार से वजन है। और सबसे बड़ा वजन कहाँ से आया इंसान के अंदर? कौन सा वजन आया? कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कुरान से बस जवाब दूंगी। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, जब अल्लाह ने अपना अम्र रब किया तो इंसान में वजन आया। दलील दूं? अम्र रब से ही तो वजन आया है। हम जिंदा हैं, किसी को ले जाए यहाँ से दरिया में, भाई ऐसा करना नहीं है, तो मैं मिसाल दे रही थी, दरिया में फेंकना शुरू कर दो कि भाई मोहम्मद ने कहा था जाकिरा ने। मगर ले जाए कोई किसी को दरिया में फेंके तो क्या होता है? नीचे मौजों में चला जाता है। क्यों चला जाता है? उसके अंदर वजन है। इधर मौजों ने उसको लिया अपने अंदर, वो क्या था? पहले रूहे मिन अम्रि रब्बी, जो अम्रे रब था वो बाहर निकल गया, रूह चली गई। दरिया की मौजों ने तुम्हें हल्का कर दिया, पानी के सतह में इंसान आके तैरने लगता है। जाने ग्राम सरवर दे जो मोहम्मद जिक्र अली इब्न अबी तालिब से वजन पैदा होता है। जिक्र अली के बाद परवरदिगार आलम ने कहा है ना, अली का जिक्र होता है, अली की मोहब्बत अपने दिल में आतश मोहम्मद आल मोहम्मद बर्पा करके आए। अली की विलायत कोई वोट नहीं है, अली की विलायत कोई मन्नत नहीं है। हम आपसे हाथ जोड़े, भाई अली को मान लो, अरे अली को मानो तब भी अली है, अली को न मानो तब भी अली है। तुम्हारे मानने से अली बढ़ता नहीं, तुम्हारे छोड़ देने से अली घटता नहीं। पूरी कायनात अली को माने, अली को कुछ नहीं मिलता। पूरी कायनात अली को छोड़ दे, अली का कुछ नहीं जाता। लेकिन अली जिसको छोड़ दे उसका कुछ रहता है। खतीब को अपने अज़ादारों की बड़ी पहचान रहती है और दूर दूर से देखा करते हैं। और जो थोड़ा मेरी आड़ में पड़ रहे हैं वो ये ना खुश रहे कि हम नजरअंदाज किए हैं, है ना। हम तो उन परखने वालों की सीरत पे चलने वाले हैं जो चराग बुझा के परखते हैं, चराग बुझा के परखने वालों की सीरत पे हैं। तो चाहे सामने हो चाहे ना हो, हमारी निगाहों में रहता है मजमा, चेहरे मेरी निगाहों में रहते हैं। बारेगा जो ये सफ़े अज़ा में जिनकी जगह भरी हुई है, साल आइंदा सबकी जगह भरी रहेंगे, मेरी दुआ रहती है। क्योंकि खतीब को अपने रोने वालों से बड़ा प्यार होता है। एक छोटा सा वाक़या बयान करूंगी, उसके बाद रखते मसाइब, क्योंकि मौला अली के मैंने फज़ाइल कहते हुए कहा कि अखरजल मरा, अपने वजन अपने अंदर ऐसा न हो कि हमारे किरदार से हमारे अंदर वजन घट जाए। वजन दो चीज़ों से होता है, एक रूह से होता है, दूसरा वजन देने की तरकीब रसूल ने बताई थी। इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन, सक़ील कहते हैं भारी को, हम तुम्हारे बीच में दो भारी चीज छोड़े जा रहे हैं, है ना। तारिकुम फीकुम सक़लैन, एक किताब इतरत व अहले बैत ही व तमस्सकतुम बिहिमा, तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। क्यों रसूल कह रहा था? क्योंकि जब महशर का मैदान होगा, सूरज अपनी गर्मी खत्म कर देगा, जब कुछ न होगा, ना वो इधर कबूरे बोसरत व इधर समाउन फतरत व इधर
नजूम कदरत, ये सब सितारे चांद बुझ जाएंगे, हमारे अंदर वजन खत्म होगा, वजन खत्म होगा। किससे वजन पैदा कारिया तो मलकारिया वो मात्रा का मलकारिया यौम यकुन नासो का फराजिल मफसूसे वो तकुन जबाल का लेनिल मंफूर का तकुन जबाल, ये जबाल जो पहाड़ भी इतने बड़े बड़े जो धरती के सिर को दबाए हुए हैं ना, ये पहाड़ भी उड़ने लगेंगे, इतने हल्के हो जाएंगे। तो हम क्या होंगे, हम तो छोटे छोटे से पतंगे बन जाएंगे, उड़ने लगेंगे, अपने अंदर वजन पैदा करेंगे। किसी एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, एक हाथ में कुरान होगा, अपने अंदर वजन पैदा करो। बस आखिरी आयत पे और ये मेरे रसूल जो ये तुम क़यात करते हो तो ये तुम कभी भूलोगे नहीं। ये जो बच्चियां पढ़ती हैं कुरान के सूरह आला की इस आयत को जाके देख लेना, थोड़ी सी तिलावत करना, तुम्हारी याददाश्त तेज हो जाएगी, क्योंकि परवरदिगार आलम ये कह रहा है सनो करेगा भला तनसा, इंसान से बना हुआ है, निसियान से बना है कि तुम कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद मैं वाक़या ये पहुँचना चाह रही, मौला कायनात के फजाइल पढ़े, मौला के फजाइल पढ़े कि अली वो है ना, अली बादशाह, अली शहनशाह, अली अमीर मोमिनीन, अली नातक़ कुरान, अली किताब मुबीन, अली वो है जो अर्श पे बैठ कर लहजे वहदत कुदरत में बात करता है अपने बंदे से, फर्श पे बैठ के भी हुकूमत अर्श पे करता है, अपने अंगुष्ठ के एक उगे हुए नाखून की मदद से अगर वो चाहे तो पूरे निजाम शम्सी को पलट सकता है। अली के घर पे सितारा उतरे, अली की दुल्हन तेहरा बने, अली का ससुर रसूल बने। अज़ीज़ान गिरामी कितने सिफ़ात बताए, नहीं सिर्फ एक है कि मुझे अली का दामन मैसर आ जाए। एक छोटा सा वाक़या अली के दामन में, हमने एक बात कही कि हम बहुत अच्छे काम करते हैं, हम बहुत अच्छे काम, आप बीवियों सब बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन एक गलती करते हैं, अच्छे काम तो करते हैं लेकिन बुरे से बच नहीं पाते हैं। हमें पहले बुरे से बचना है, सिर्फ बचने की हम कोशिश करें, हमारे अच्छे काम थोड़े से भी होंगे तो वो रह जाएंगे, है ना। यही तो है, एक शख्स आया मौला के दरबार में आया, मौला का चाहने वाला था, उसने कहा या अली मैं इतनी कोशिश करता हूँ, मैंने आपने जो कहा मैंने अमल किया, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मगर मुझसे ये खता हो गई। कहा क्या खता हो गया? कहा मुझे बहुत सख्त गुनाह सरजद हो गया है। अली ने चेहरे के ऊपर जो खतरे के पसीने के कतरात देखे, अली समझ गए जब पसीना आता है ना इंसान से, जब इतनी बड़ी खता हो तो चेहरे के ऊपर पसीना आने लगता है। बीवियों एक बात और, आज की मजलिस का मेरा ये पैगाम है, अपने बच्चों को और अपने दिल से झूठ बोलना छोड़ दें। जब हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, और सच जब बोलेंगे तो ईमान पे रहेंगे। जब इंसान ईमान पे होता है ना, परवरदिगार आलम अइम्मा तारीम ने ये कहा, हम उस बंदे का छठा सेंस खोल देते हैं। 5 सेंस सबको मिले हैं, अल्लाह छठा सेंस जिसका चाहता है वो खोल देता है। निगाहों की लबों की जुम्बिश से बंदा भी पहचान सकता है कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्या कहना मेरे अली के जो है जानने वाला है, तो अली कैसे नहीं पहचानेंगे? अली ने पहचान लिया। तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो खता की है तो मुझसे क्यों? ये भी इसमें भी एक पैगाम है। हमसे कोई खता करके बताए तो हम बड़ी दिलचस्पी लेंगे, हाँ बताओ, चाहे जितनी नफरत हो, फौरन अभी निकल से ही दूसरे को बयान करना है, लेकिन फौरन उससे सुनेंगे, है ना। चेहरे को बहुत पहचाना करिए, है ना। दिल न मिले तो हाथ न मिलाया कीजिए, 2 चेहरों का बोझ न उठाया कीजिए। ये शहरत इस्मात है, कुछ कह नहीं सकते, है ना। ये शहरत इस्मात है, कुछ कह नहीं सकते। आपस में खड़ा शख्स फरिश्ता है कि इब्लीस, पहचानते नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने राज को अफशा किया करें। मौला के पास आया था, क्या कहना मौला का हमें दरमाया सर आ जाए। उसने कहा मौला मुझसे खता हो गई है, मैं क्या करूँ? मौला ने कहा कि तेरे लिए 3 वो हैं अजाब है, इसमें से जो चाहे ले ले। कहा इतनी जल्दी क्या है अजाब लेने की? कहा मौला पता है महशर का मैदान होगा, वहाँ भी तो आप ही होंगे, और वो फिर वहाँ ऐसा मामला हो जाएगा मौला कि जरा बेइज्जती हो जाएगी, है ना। हम सब अपने ही बहुत सारे रहेंगे। अभी तो यहाँ 2-4 में अपना राज भूल जाए, चलो माफी तलाफी कर लेना। जैसे बच्चे गलती करते तो पहले यार, सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है बच्चे गलती करें पहले माँ को जाए पकड़ ले, हाथ पैर जोड़ के अपनी गलतियों को। ये बच्चियां जो बैठी हुई है बड़े बड़े गलतियां करते रहते हैं, हम अपने बचपन को सोच के बता रहे हैं। मैं कोई किसी और के ऊपर इल्जाम लगाते हुए नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ की घाटी को पकड़ के कहना, परवरदिगार आलम ने जो ये कहा है कहना कि जो तुम्हारे गले की जो ये शहरत है, तुम्ही
दिन तो जरूर इंसान जब शहरत को पकड़ता है तो किसी से भी झूठ नहीं बोल पाता है। अगर आपसे कोई गलती हो तो जो तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारे बाप है, अपने राज को बता देना। सबसे अच्छी दोस्त तुम्हारी माँ होती है, सबसे अच्छा साथी तुम्हारा बाप होता है। अजीजा ने ग्रामी, और फिर क्या कहना उस बाप का जो अबूत रहा हो, जो मिट्टी का बाप हो, हम उससे क्यों ना अपने राज को कह दे रात में। अगर तुम अपने गुनाहों को नहीं कह सकती, अगर आप अपने गुनाहों को नहीं कह सकती हैं, तो जब रात में तकिया पे लेटे तो अबूत रात से अपने गुनाहों को कह देना। वो बख्शने वाला है, वो बख्शिश करवाने वाला है। आया मौला के पास बस रफ्तार को बढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे 6:30 के गुजरना है, अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए आया मौला के पास और उसने मौला से कहा मुझसे गुनाह हुआ। मौला ने कहा 3 सजा है, बता कैसी किस तरह की सजा चाहता। कहा कि मौला बताइए। कहा एक तेरे ऊपर दीवार गिराई जाए, या तुझे आग से जलाया जाए, या तुझे तलवार से खत्म किया जाए। हाथ जोड़ा, मौला चाहे मेरे ऊपर दीवार गिरा दे, चाहे मुझे आग से जला दे, तलवार से ना कत्ल करना। रसूल की हदीस याद आई। कहा जो समझदार तो था ही, अली का चाहने वाला बहुत समझदार हो जाता है। हम जिनको बुद्धू भी समझा करते हैं, जिब्राइल तारीफ सुनने वालों की अकलें बहुत तेज हो जाती हैं। उसने कहा नहीं मौला, तलवार से जो अली की तलवार से कत्ल हो जाएगा उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाती है। कहा मुझे दोनों कहा ठीक है। कलाना अली ने ऐलान करवा दिया। वाकया बहुत दिलचस्प है, आधा वाकया याद रहेगा तो घर में जाएंगी सोचेंगी कुछ कहाँ की कहाँ लगा देंगी। सलवार दे मोहम्मद वाले मोहम्मद का दिल बोला अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला अली मौला, अली मौला, फटी दीवार दर बोला अली मौला, अली मौला, लगाओ है दली नारा अली मौला, अली मौला, नारे है दली आवाज़े बुलंद नारे किनारे लगा तो देते ही हैं, लगाने के लिए होते हैं ना, इसीलिए बीच में जरूरी होते हैं। लेकिन मैं रफ्तार जब पकड़ती हूँ तो ये चाहती हूँ कि वक्त न जाए। बीवियों, मौला ने ऐलान करवा दिया कि कल इसको सजा दी जाएगी। और क्या लिया, एक जगह नायब और जफ के बीच में 2 छोटे छोटे कबीले थे। ये जो नजफ बना है ना, 2 कबीले थे, एक था नायब और एक था जफ। बीच में मौला का मजार आ गया, मौला की बरकत आ गई तो ये नजफ बन गया। दोनों को मिला दिया, दोनों में बहुत झगड़े होते रहते थे। तो मौला ने वहाँ पे बुलाया और कहा कि इसमें एक चढ़ियल मैदान है, यहाँ पे तुम आना। नलकुल इकट्ठा किए गए। नलकुल कहते हैं वो जो छोटी छोटी बीच में खाली होती है जिसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेती। चारों तरफ नलकुल बिछाए गए, बीच में उसके बैठने की जगह बनाई गई और सबने ऐलान किया गया। तमाशाई तो हर दौर में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं ना, हमें सबको तमाशा देखने को शौक होता है। निकले अगर कोई बहुत ऊंचाई पे चढ़ा देखते हैं बड़े गौर से क्या कर रहा है, तमाशा देखने की फिक्र होती है। और कभी कभी अब तो ये तमाशे का रवाज इतना हो गया है ना, कि ऊपर से वो गिर भी जाए तो हम कैमरा लिए रहते, उसको उठाएंगे नहीं, वीडियो बना करती है। तमाशे का आलम ये हो गया, वो बेचारा मर रहा है, तड़प रहा है, लेकिन हमारी वीडियो चल रही। तो तमाशे का आलम ये होता है। तमाशाई इकट्ठा आया, मौला के खिदमत में। मौला ने उसको हाथ में जलती हुई मशाल दी। मौला ने अपने हाथ से आग नहीं लगाई, अगर मौला आग लगा देते तो वो बच न पाता। मौला ने उससे कहा ये ले मशाल, मशाल, मशाल। अली का चाहने वाला था ना, मशाल किसे कहते? मशाल राह, रोशनी दिखाने वाला, टार्च बियरर। और मौला ने उसके हाथ में मशाल दी, कहा ले जा, जल, जला। उसने लिया। क्या कहने अली की मोहब्बत के, जब अली की मोहब्बत आती है तो आग आग नहीं होती है, कांटे कांटे नहीं होते, धूप धूप नहीं होती है। आया उस तपते हुए सहरा में बैठ गया, उस दरकुल के बीच में मशाल को लिया, मशाल को लगाना था। तमाशाई देख रहे थे, आग के शोले आसमानों तक उठने लगे। कुछ लम्हे के बाद आग जो बुझी तो वो देखा मुसल्लम बैठा हुआ है। किसी हासिद तो सब जगह होते हैं, किसी हसद करने वाले ने, मौला सलामत रखे, बहुत चेहरे पे मुस्कुराहट आती, फजाइल अली देखिए जिन चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आती है और आनी चाहिए, क्योंकि फजाइल में मुस्कुराना लाजमी होता है। इधर जब वो देखा कि वो मुसल्लम बैठा हुआ है तो जिसके दिल में जिनके हसद होता है, बाकी निकला मजमे में से, कहा वाह अली,
चलाया भी, बुलाया भी और चला भी नहीं। मेरे मौला ने क्या जवाब दिया? सुनना दान, सुनना समझ। मेरा काम था सजा देना, मैंने सजा दी। अब अली के चाहने वालों को आप चलाती ही नहीं है तो मैं क्या करूं चलाने के लिए? जाने ग्रामी, मैं बस अपने रक्त पे आ गई। आपने बहुत अच्छा साथ दिया। इस साथ परवरदिगारा हम साथ साथ रहे, मौला के साथ रहे, हमेशा के मैदान में रहे। मुझे आज किसी मखदूमा के मसाइब पढ़ने हैं और वो किसी बेटी के, क्योंकि बेटी एक ऐसा अनमोल तोहफा है ना। कहते नहीं है कि बेटे जायदाद की वारिस होते हैं और बेटियां जनाजे की वारिस होती है। आंखें अश्कबार होने लगी है ना। घर में उजाला बेटियां करती हैं, उजाला कहे जाते हैं बेटे। और सबके घर में बेटियां हो, जिसके घर में बेटियां नहीं है, बहुओं पर परवरदिगार उनकी बहुओं को वो शरफ दे के उन्हें बेटियों की कमी न लगे। बेटी वो चीज होती है, लेकिन बेटी और बेटे में ये फर्क है। बेटा माँ से उनसियत रखता है, बेटा माँ से मोहब्बत रखता है, बेटी बराबर मोहब्बत करते हैं, लेकिन लगाव ज्यादा बेटी को बाप से होता है। एक बेटी कहते हैं ना, किसी बच्ची ने लिखा कि मुझे बाबा से ज्यादा शाम अच्छी लगती है। कहा क्यों? कहा बाबा तो खिलौने लाते हैं, लेकिन शाम मेरे बाबा को लेकर आती है। शाम ऐसी आई जिसमें बाबा ना आया, बेटी इंतजार करती रही। अज़ादाराने शुहदाए करबला, इस सकीना बिन्तुल हुसैन के वो दर्दनाक मसाइब हैं। मेरी बीबी रबाब से पूछिए, थोड़ी सी तमहीदी मसाइब कि जब मेरी बीबी उम्मे कैस के बादशाह की बेटी थी, जब आई घर पे देवड़ी पे हुसैन की, तो जनाब सुगरा जिनका सिन सिर्फ 4 बरस का था, जनाब सुगरा उस वक्त गहवारे में थी। और बीबी जब रबाब आई तो हुसैन ने उस जमाने का रवाज था कि जब बहुएं आती थी तो उनको तोहफे दिए जाते थे। हुसैन ने कहा, रबाब तुम्हें हम क्या तोहफा दें? अच्छा बीबी सुगरा जो थी, जब छोटी सी थी तो इनकी माँ मर गई थी, उन्हें साहब की बेटी थी, इनकी माँ मर गई थी, गहवारे में लेटे थे। बीबी ने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तोहफे में तो मौला मुझे ये बेटी दे दें। सकीना कैसे सीने पे हुसैन के सोती थी, यहाँ से लाऊंगी और उसके बाद रखते मसा। हुसैन ने गहवारे से सोहरा को उठाया, रबाब की आगोश में दे दिया। कहा, आका आज से ये बेटी मेरे पास सोएगी। वक्त गुजरता गया, 4 बरस के बाद सकीना पैदा हुई। जो सकीना हुई तो हुसैन को, बीबी रबाब को, बहरहाल जब एक बच्चा होता है दूसरे बच्चे की परवरिश में थोड़ी जाफेशानी होती है। एक दिन हुसैन बाहर से आए तो देखा सोहरा दर पे बैठी हुई है, दम पे बैठी बाबा का इंतजार कर रही है। हुसैन आए तड़प गए। जब माँ नहीं होती है जिसकी, माँ बहुत ख्याल रखता है। हुसैन आए तड़प गए। कहा सोहरा, हुसैन जैसे आए, सोहरा ने बाबा का दामन पकड़ लिया। बाबा मैं आज से आपके पास सोऊंगी। कहा सोहरा क्या बात है? हाथ को पकड़ के लेकर आए बीबी रबाब के पास। कहा ये बीबी, आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई जो मेरी सोहरा ये कहती है बाबा मैं आपके पास सोऊंगी? बीबी ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अपनी जानिब से कोई ऐसी गलती नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है जाने अनजाने में बच्चों का दिल बड़ा नाजुक होता है। सोहरा का दिल कहीं उसी बात में ठेस पहुंची हो सोहरा के दिल को। थोड़ी देर बाद गुजरे में गई, सकीना को आगोश में उठाया, लाई हुसैन की आगोश में दिया। कहा बाबा, कहा मेरे वाली, आज से ये तरतीब बदल रही है। सकीना आपके सीने पे सोएगी, सोहरा मेरे पास सोएगी। मैं कहूँगी बीबी, हाय ये क्या कर दिया? हुसैन के सीने
अजीम बड़े नाजों से पाला था। सकीना की एक खासियत और थी, मेरी बीवी को अंधेरे से बहुत डर लगता था, घबराहट होती थी। हुसैन आके में देखते थे और कहते थे मेरी सकीना को अंधेरे से डर लगता है, मेरी सकीना अंधेरे से डरती है। ए नवाब, गुजरे में चराग जला दिया करो। मैं कहूँगी ये चराग क्यों जलवा रहे हैं? सकीना को तो शाम के जिंदान में सोना है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपने हमें जोड़ा अदा कर दिया। मैं मसाइल को इख्तिसार करूँगी। एक छोटा सा वाक़या बयान करते हुए वीडियो जब आप वजारतों पे जाएं देखेंगी, कुछ कुछ नूर के बाद छोटी छोटी सी खतरे मिलेंगे। जब ये बाबे अशरा बीबियां कैद होकर चली हैं, माओ की आंखों से छोटे छोटे बच्चे गिर जाया करते थे। ये राहों में जो ये खतरे हैं इन बच्चों की है। और सुनिएगा, ये उस जमाने में लोग जब ये काफिला लोग जानते नहीं थे ये कौन है, उसने ऐलान किया था बातिल है। ये कारवां आ रहा था जब करबला से कूफे की तरफ आ रहा था। एक राहिब था, एक ईसाई मजहब का था, जिसकी बेटी का नाम था आमिना। तारीख में दिया हुआ है उस जमाने में नाम इसी तरह के होते थे, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो। उसकी बेटी आंखों से अंधी थी। वो दरख्त के नीचे एक हुजरा बनाए हुए था, वहाँ पे अपनी बेटी को लेकर रहता था। जब इन बेकसों का कारवां यहाँ से गुजरने लगा, कूफे के पास से ये गुजरने लगा, तो इस बाग से जब गुजर रहा था तो देखा उस बेटी के कानों में एक आवाज गई कि जो नोके नेज़ा से आवाज आ रही थी, कौन से सूरह कहफ की तिलावत की आवाज आ रही थी। ये लड़की इसकी नाबीना थी, चल भी ठीक से नहीं पा रही थी, लेकिन आवाज में इतना दर्द था कि इस दर्द की आवाज से ये अंदाजे से आवाज के हिसाब से अपने घर को छोड़ दिया और आगे बढ़ती हुई आई। आते आते ये उस मुकाम पे आ गई जहाँ पे सरे हुसैन था। सर के नीचे आई और आवाज को सुनने लगी। आंखों से दिखाई नहीं देता था। एक बार ऊपर निगाह करती है, उस सर से 2 कतरे खून के गिरे। मौला शिफा दे देना मेरी बीवियों को भी। मैंने बात बीवियों के क्या आंखों से जो आंसू गिरे हैं, बीबी ज़हरा के जैसे हम बने, आंखों का मरहम बने। पहले देखा मरहम बने। आपको पता है आपके आंखों से जो अश्क निकलते हैं ये फरिश्ते बीबी ज़हरा को बक़ीया में देते हैं। ये मरहम है बीबी के कलेजे का। वो कतरे गिरे खून के, कतरे जब हमारी आंखों में गिरता है तो हम आंखों को मलते हैं। उसने मलना शुरू किया। अब जब मलना शुरू किया तो उसके आंखों की बीनाई आ गई। उसने सर में उठाया और जब नजारा देखा, क्या नजारा देखा, नोके नेज़ा पे कटा हुआ सर है, कुरान की तिलावत कर रहा है। अजीजों, उसके बाद उसने क्या देखा, कुछ बीबियां आ रही है। अभी जो चल नहीं पा रही थी वो चलने भी लगी। कुछ बीबियां आ रही हैं, उनमें बीबियों में एक बीबी सर पे हाथ रख के हाय हुसैन करके रो रही है। अजीजों, वो आई पास में आके कहती है ये बीबी इतना क्यों रोती हो, ये बीबी इतना नहीं है ना करो। उसके बाद वो बीबी नहीं चुप हुई। बीबियां समझ सकती है वो कौन सी बीबी है। वो बीबी यहाँ के बीच में भी मौजूद होगी। एहतराम से बोला, हाँ बीबी ने आपने पूछा बीबी आपका दर्द क्या है। बीबी रो रही है, गिरिया कर रही, नहीं बताती है। इतने में 4 बरस की बच्ची मजमे से निकल के आई, जिसके होठ फटे हुए थे, वो कुत्ते का दामन जड़ा हुआ था, चेहरे के ऊपर ताजियातों के निशान थे। उसने आके कहा आमिना, आमिना बीबी से कुछ न पूछो, तुम जानती नहीं हो इनका दर्द क्या है। बीबी ने कहा अरे कोई भी दर्द हो, अरे जो नोके नेज़ा ये सबके दर्द में दूर कर देते हैं। बीबी ने कहे नेज़ा के पकड़ते गए, इनका दर्द दूर हो जाएगा।
मुझे एक बात बता दो कि जब ये जकीन आसमान में देखने वाले तरफ आता है, आप आंखों को बंद क्यों कर लेते हैं? हाय मेरे बोला के पास जवाब है, छोटा कबाब या सामने जिंदान का मजाक तमाम हो गया। अपने हाथ में तेरा आधा कर दिया, तेरी शहरा ने कहा आपको मैच को अपने अपने मुरादे कर देना, ऐसा करे ना यार जिंदान के सामने सकीना है। कोई बच्चा रोता है तो बच्चे को क्या दिया जाता है? खिलौने दिए जाते हैं, बहलाया जाता है। किसी के घर में अगर मौत हो जाए, जख्मी हो, लाशा बाप का कपड़ा दान दिया जाता है, लेकिन हाय सकीना को कैसे बहलाया जा रहा है? बाप का कटा सर दे के बहलाया जा रहा है। सकीना जिंदा के जनाजों को पकड़ के खड़ी रहती थी, बाबा का इंतजार करती थी कि बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे, हम मदीने कब जाएंगे। सकीना इंतजार करती थी। रात से गुजरने वाले एक कलील मुद्दत सकीना चाँद के जिंदान में है। बस मसाल के आखिरी हिस्से में मैं उनको दफे तय कर सकूं। लेकिन शाम की औरतों ने दस्तूर बना लिया था, अपने अपने बच्चों को आगोश में लेती और आती जिंदान में शाम के पास खड़ी होती, कहती सकीना मदीने की कहानी सुनाओ। हाय हुसैन कितना मजलूम है, बच्चे का अगर बाप मर जाए उसका दिल बहलाया जाता है। वो 4 बरस की सकीना जिंदान शाम के बच्चों का दिल बहला रही है। सकीना बच्चों का दिल बहलाती थी, कहानी सुनाती थी। एक था मदीने में बादशाह, उसकी एक बेटी थी, अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। रोज रोज मदीने की कहानी, उसका बाबा उसके लिए खजूरें लाता था। कहता बोला झोली को अपनी फैला देना और मांग लेना, बता दे मेरी नौजवान बच्चियों की मतलब किस्मत को मुकद्दर को संवार देना। एक रात रोज दीदियों ने दस्तूर बना लिया, शाम के जिंदान में जाके सकीना से कहानी सुनना है। एक शाम ऐसी आई, बच्चे आए हैं, आगोश में बच्चे हैं। सकीना सकीना कहानी सुनाओ, अंधेरा है, जिंदान में सन्नाटा हो गया है, आवाज नहीं आ रही है। सकीना सकीना क्यों नहीं बोलती? सकीना क्या हमसे नाराज हो गई हो? जिंदान टूटा हुआ था, कुछ बच्चे आगे आए, कहा देखे नहीं सकीना कैसी है, कहाँ है? बच्चों ने फिर चढ़ के झाँका, सकीना नहीं दिखाई दी। एक नहीं कैदी है, सर को झुकाए है, कहा रे भाई सकीना मेरी कहाँ चली गई? सैयद सज्जाद ने बस आखिरी फरियाद करके गाँव के साथ उठना, सफेद को झुक के उठना। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है यहाँ हम कहाँ नहीं है, यहाँ 14 मासूमें आ चुके हैं। मेरा घर कोई मौजूद है, अपने दामन को फैला देना। बीवियों चले सैयद सज्जाद अपनी हथकड़ियों और बेड़ियों के बाहर को संभाल लेंगे। मेरा मौला खड़ा हुआ। शाम के बच्चों तो तुम्हें कहानियां सुनाती थी, हमेशा के लिए सो गई है। अगर हो सके तो आना एक चढ़ाव रहे जला देना। बीवियों एक जुमला और सुन लीजिएगा, सैयद सज्जाद ने तकसीम की है, तकसीम की है, लेकिन लोग ये कहने पे है अरे कफन नहीं था, अरे सरवरे भेजा बेटे को कफन ना होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सकीना के लाशे को कुर्ते में क्यों दफनाया गया था? अभी जंजीरी मातम बच्चे करते हैं, जंजीरी मातम करके जब शाम को आते हैं, बाल डालती है, अगर कोई कमरे के लेना से बात है मुझे बात करना, लेकिन सुनना लगाती है मरहम, लगाती है चोरा चिड़ाती है जख्म को हटाती है। सैयद सज्जाद ने सकीना का लाशा लिया, एक आवाज ज़ैनब की आई, सज्जाद बेटा। सकीना को पता है 1 साल से बाजिया ने खा
बीबी फातिमा ज़हरा सफेदा पे जो रोने वाली बीबी है, इनके नाम हमको अपनी दुआओं से भर देना। जो बच्चियां हैं यहाँ मौजूद हैं, इनके सरों पे इनके बाप के साए को सलामत रखना। बाप का साया बच्चे के दिल को बड़ा मजबूत रखता है। कभी भी किसी यतीम बच्चे के सामने कोई बाप से अपने बच्चे को प्यार न करे, ये रसूल की सुन्नत है। और जब यतीम को देखिए तो उसके सर के ऊपर हाथ जरूर फेर के सीने से लगाना। यतीम को परवरदिगार, यतीम का दिल बहुत छोटा होता है। अल्लाह सकीना की यतीमी का वास्ता, अपने बच्चों को बारे यतीमी से बचाना। सैयद सज्जाद की मजलूमी और बीमारी का वास्ता सबको शफाए कुल्ली अता करना। जो बीबियाँ यहाँ आई हैं इनकी तमाम मुरादों को पूरा करना। जो बानी मजलिस है बारे रहा, इनके तमाम मुद्दों को मैं तो नहीं जानती, लेकिन हर एक के दिल में जो भी अरमान है, जो भी तमन्नाएं हैं, बीबी ज़हरा साल आइंदा जब मैं पढ़ूँ मजलिस तो इनकी सबकी तमन्नाएं बीबी ज़हरा पूरी कर देना। जो भी बीबियाँ हैं, जो जवान बच्चियाँ हैं, इनके मुकद्दर को बीबी फातिमा ज़हरा इनके मुकद्दर को खोल देना। और हम हमें हुसैन को रस्मन न बनाए। हमारी एक खास ये दुआ होनी चाहिए कि जो भी हम करें वो दिखावे से न करें। और इमाम ज़माना के ज़हूर में भी बारे इलाहा ताजील फरमाना, मौला ताजील फरमा। और हम इमाम ज़माना के तमाम उन मददगारों में हमारे बच्चे हों, हम हो, अगर हम कब्र में भी हों तो हमें मौला बुलाना। जो बीवियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, इनकी जो जगहें भरी हुई हैं, मेरे दिल से दुआ है कि इनकी जगहों को साल आइंदा जरूर भरा रखना। खतीब को अपने चाहने, अपने अज़ादारों से बड़ी मोहब्बत होती, जब कोई जगह खाली होती है तो बहुत याद आती है। हम जो हाथ और गाजी के अलम को उठाने के लिए उठते हैं, उसमें कलम की कुव्वत देना। मातमे हुसैन। एक बार ये ऐलान और समाज फरमाने कर दी इसी वक्त।